Assalamu alaikum. My name is Hifza. I am the teacher of TKS Senior Campus. Okay, before starting our lecture of today, I want to share a good message. The good message for today is, let us remember that one pen, one child, one book and one teacher can change the world. Okay, students, now take out your English course book. Here is your English course book. Take out along with pencils. On page number 11. Okay, before starting our today's lecture, I want to ask some questions of the previous lecture. Okay, be attentive. Okay, Hafsa Umar. जी बच्चे, can you hear me? Hafsa Umar, unmute your microphone. Hafsa Umar, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, बच्चे, you were present in yesterday's lecture. Yes, ma'am. Okay, बच्चे, tell me the meaning of fountain. Fountain means Savara. And what is the meaning in English? Waterfall. Yes, you can say. Good. Okay. Okay, Mohsen Khan. बच्चे, unmute your microphone. I want to ask a question. Yes, Mohsen Khan, can you hear me? Hello, ma'am. अच्छा बच्चे, I want to Yes, ask, ma'am. you were present in yesterday's lecture? No, ma'am. No? It's okay. Yes. Okay, Anam. Anam बच्चे, unmute your microphone. I want to ask a question. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, बच्चे, tell me the meaning of marigolds. What is the meaning of marigolds? गेंदे के फूल. Excellent, good. Okay, now come towards page number 12 of today's lecture, okay? All of you hold pencils in your hands. Okay, let's start our today's lecture. Okay, Gohar and his sister Sara like to play with my double chin. But I would never have dared touch my old granny on her chin or anywhere else. Okay, बच्चे, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि हम जिसकी बात कर रहे थे, द पर्सन हेयर, ओके, ही वॉज अ मैन विद डबल चिन. उसकी डबल चिन थी एंड जब उससे रीज़न पूछा, सो ही सैड, I got this double chin from my grandmothers, okay, and because she was a lady with a number of chin. Remember this one point? So, अब क्या कह रहा है गोहर? Gohar and his sister Sara like to play with my double chin, but I would never have dared to touch my old granny on her chin or anywhere else. ये बता रहा है आपको, ये जो बंदा है ये कह रहा है कि गोहर और उसकी सिस्टर सारा यूज़ टू प्ले विथ माई डबल चिन, ओके, क्योंकि इस आदमी की भी आपने देखा है ना प्रीवियस लेक्चर में कि इसकी भी डबल चिन थी. सो ही इज सेइंग कि गोहर और उसकी सिस्टर सारा यूज़ टू प्ले विथ माई डबल चिन, लेकिन जब मैं छोटा था, प्रीवियस पास्ट की बात हो रही है, सो आई नेवर डेयर्ड टू टच माई ग्रैनीज डबल चिन, ओके, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट वुमेन. ओके, शी वॉज अ स्टर्न, reserved,
woman who believed that little boys should speak only when spoken to. Okay, now what's the meaning of stern? Stern means, write the meaning of stern. Stern means serious and in Urdu it is सख्त, यानी वो बहुत सीरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी. किसकी, या किसकी बात हो रही है? ग्रैंड मदर की. गुड. स्टर्न मीनिंग इज सीरियस एंड इन उर्दू इट इज सख्त. ओके, एंड उसके साथ ही आपके पास नेक्स्ट वर्ड लिखा है दैट इज रिजर्व्ड. रिजर्व्ड मीन्स अ पर्सन नॉट बीइंग फ्रेंडली. ओके, राइट द मीनिंग ऑफ रिजर्व्ड एंड स्टर्न ऑन योर बुक. आई एम रिपीटिंग द वर्ड. स्टर्न मीन्स सीरियस, या फिर उर्दू में इसको क्या कहते हैं, सख्त. एंड रिजर्व्ड मीन्स अ पर्सन नॉट बीइंग फ्रेंडली, यानी एक बंदा जो ज़्यादा आपसे बात ना करता हो, ज़्यादा फ्रेंडली ना हो. ओके, राइट द मीनिंग ऑफ स्टर्न एंड रिजर्व्ड. हरी अप बच्चे, आई एम वेटिंग. Okay, done. Let's move on. Okay, she was a stern, reserved woman who believed that little boys should speak only when spoken to. ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्रैंड मदर की. ठीक है, ऑथर इज सेइंग कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की वुमेन थी, जिनका मानना ये था कि लिटिल बॉयज़ शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तब बात करनी चाहिए जब बात अगर उनसे की जाए, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए. ओके, ये किसका बिलीव था? हिज ग्रैंड मदर. ओके, शी फेड अस रीजनेबली वेल, शी केप्ट अ ग्रेट खानसामा. ओके, फेड अस मीन्स वो हमें खुराक देती थी, हमें पालना जिसको कहते हैं इन उर्दू. ओके, शी केप्ट अ ग्रेट खानसामा. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ खानसामा? इसके ऊपर आपको छोटा सा 6 नज़र आ रहा है. दिस मीन्स कि आपके पास द मीनिंग ऑफ खानसामा इज़ हेयर. यू कैन सी आपके पास नीचे येलो सा ब्लॉक बना हुआ है, इसमें सेकंड मीनिंग है. सेकंड वर्ड को देखें, खानसामा. एंड व्हाट्स द मीनिंग? अ कुक. ओके, तो इसकी ग्रैंड मदर ने घर में कुक रखा हुआ था, और देखिए ये है आपके पास मीनिंग. खानसामा मीन्स कुक. ओके, अ पर्सन हु कुक्स. राइट द मीनिंग ऑफ खानसामा. आपके पास बुक में भी नीचे लिखे हुए कुछ मीनिंग्स. ओके, यू सी द येलो ब्लॉक ओवर हेयर. इसमें आपके पास कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग्स लिखे हुए हैं. ओके, ओके, बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग्स विद द रिजल्ट दैट आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग्स. ओके, इंडल्जिंग मीन्स, राइट द मीनिंग ऑफ इंडल्जिंग. इन्वॉल्व, इन उर्दू इट इज़ मुलव्विस. ओके, इसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने एक ही खानसामा रखा हुआ था, और शी डजंट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग्स. ठीक है, उसको दूसरों से मदद लेना उसकी आदत नहीं थी. एंड शी बिलीव के वी डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन सेकेंड हेल्पिंग्स. ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ इंडल्जिंग हेयर. इंडल्जिंग मीन्स इन्वॉल्व. इन उर्दू इट इज़ मुलव्विस. हरी अप बच्चे, राइट इट डाउन ऑन योर बुक. Okay, good. Now, here the third paragraph. 2 mutton koftas were all that I was allowed with my plate of rice. I liked koftas, still do, and it was painful for a small boy to have to stop at 2. अच्छा, अब ये कौन से इंसिडेंट की यहाँ बात हो रही है? ये प्रीवियस पास्ट की बात हो रही है. ओके, अब ऑथर जो है वो अपने पास्ट की, यानी जब वो चाइल्डहुड में था, जब वो छोटा था, तो उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ क्या करती थी? ही लाइक कोफ्तास. ठीक है, उसको कोफ्ता जो है खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसको कितने मिलते थे? जस्ट 2 कोफ्तास मिलते थे विद अ प्लेट ऑफ राइस. तो आप उसको देख सकते हैं ना, ही इज़ वेरी मच ओवरवेट. तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसका एक प्लेट से ज़ाहिर है गुजारा नहीं होता. सो ही इज़ सेइंग कि मैं, ये बहुत पेनफुल बात है, बहुत दर्द वाली बात है मेरे लिए कि मैं एक प्लेट पे गुजारा करता था, बिकॉज हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, तो वो उनको नहीं कह सकता था कि आप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा खाने को दें.
Okay, now that I am a grown up with an independent source of income, I help myself to afford. Who can stop me? Okay, देखिए प्रीवियस की बात कर रहा है एंड साथ फ्यूचर को भी इन्वॉल्व कर रहा है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब जब मैं एक इंडिपेंडेंट मैन हूँ, अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद कमा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, आई एम अ ग्रोन मैन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम मीन्स कि वो अच्छा कमा रहा है. ओके, कोई जॉब कर रहा है या जो भी, तो वो अब एक इंडिपेंडेंट मैन है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर. क्या फोर, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? कोफ्तास की बात हो रही है. ठीक है, कि अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ एंड आई हैव माई ओन सोर्स ऑफ इनकम, सो आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर. ओके, एंड नाउ ही इज सेइंग हु कैन स्टॉप मी नाउ. ओके, वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं यहाँ पे कि अब मुझे कौन रोक सकता है, क्योंकि बचपन में तो उसकी ग्रैंड मदर थी, अब बड़े होके तो वो खुद इंडिपेंडेंट है, तो उसको अब कोई रोक नहीं सकता. दैट इज़ वाई ही इज़ अ वेरी मच ओवरवेट. ज़्यादा हेल्दी है वो. क्यों? क्योंकि अब उसकी फूड इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो गई है. ओके, नाउ द फोर्थ वन पैराग्राफ. डॉक्टर बेग हु ड्रॉप्स इन टू सी मी वंस अ ईयर remarked that I looked overweight and that I should cut down on my food intake. Okay, Dr. Beg, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है? This one was the man, the author, okay, and this one is his doctor. डॉक्टर उसको कब विजिट करता है? ही विजिटेड हिज डॉक्टर वंस अ ईयर, यानी साल में वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर को जाके विजिट करता है. ठीक है, एंड उसका डॉक्टर उसको हमेशा एडवाइस करता है टू कट डाउन हिज फूड इनटेक. ठीक है, अपना फूड इनटेक यानी जो खुराक है वो थोड़ी कम कर दो, बिकॉज यू कैन सी द मैन इज़ वेरी मच ओवरवेट. ठीक है, सो डॉक्टर इज़ एडवाइसिंग कि प्लीज़ कट डाउन योर फूड इनटेक. और रिमार्क्ड, यहाँ आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, रिमार्क्ड. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिमार्क्ड? रिमार्क्ड मीन्स टू से समथिंग. ठीक है, व्हेन यू विजिटेड द डॉक्टर, जैसे हम देखें किसी से मिलने जाएं काफ़ी टाइम बाद और वो हमें कहे कि आप तो कमज़ोर हो गए हैं या आप तो हेल्दी हो गए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिमार्क, यानी एक कमेंट पास करना. ओके, आप किसी को देख के जब कुछ बोलते हो, दैट इज़ नोन एज कोई स्पेसिफिक कमेंट जो होता है. ठीक है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी स्किन टोन से रिलेटेड, इसको कहते हैं रिमार्क्ड, टू से समथिंग. राइट द मीनिंग ऑफ रिमार्क्ड. Write the meaning of remarked, to say something. Okay? Okay, good. Okay, that I looked overweight and I should cut down on my food intake. Okay? आपको नज़र आ रहा है ना, डॉक्टर उसको हर साल जब भी वो विजिट करता है, the doctor advised कि please cut down your food intake. But what did the man say? Let's find out. What did you have for lunch? He asked. Okay, who asked? The doctor. Okay, kofta curry and rice. Now who said this? Said the man, this one man. Okay, the doctor asked, what did you have for lunch? Kofta curry and rice. How much rice? Just 2 small helpings. 2 small helpings here means कि उसके just वो 2 plates की बात कर रहा है. ठीक है, कि that I have just 2 plates of rice here. Okay, and how many koftas? तो the man said only 4. आप देखें, 4 koftas with 2 plates of rice. Don't have more than 2, he advised. Yes granny, I said. Now आप देख रहे हैं डॉक्टर के सामने बैठ के वो क्या बोल रहा है उसको कि yes granny, I said. डॉक्टर ने उसको बोला कि 2 से ज़्यादा कोफ्ता आप अपने फूड इनटेक में मत रखो. ओके, एडवाइस कर रहा है उसको, मशवरा दे रहा है. लेकिन वो आगे से क्या बोल रहा है? येस ग्रैनी, आई सेड. अब उसने यहाँ ग्रैनी क्यों बोला डॉक्टर को देख के? बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड. क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता था, उसकी जो ग्रैनी थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो जब इस तरह फूड इनटेक की बात होती थी तो ये अक्सर उसकी ग्रैनी ही इस तरह के मशवरे करती थी कि आपने इतना खाना है और इतना नहीं खाना. अब यहाँ वो डॉक्टर को देख के बोल रहा है येस ग्रैनी, आई सेड. डॉक्टर बेग गेव मी अ पजल्ड लुक. ओके, सो अब उसने ग्रैनी बोला, सो डॉक्टर गेव हिम अ कंफ्यूज्ड लुक, पजल्ड लुक. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पजल्ड लुक? पजल्ड लुक हेयर मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड, यानी उसने उसको ग्रैनी बोला ना डॉक्टर को, तो द डॉक्टर वॉज अ लिटिल बिट शॉक्ड और ही वॉज
you can say confused, unable to understand. यहाँ इसका मतलब confused भी आ सकता है और unable to understand. Write the meaning of puzzled look. Hurry up students, I am waiting for you. Puzzled look, unable to understand. Okay, let's move on. Okay. Sorry, I thought you were my grandmother. Now who said this? This man said. Okay, वो आगे से उसको कहता है कि सॉरी मुझे लगा कि यू आर माई ग्रैंड मदर. किसको कह रहे हैं? डॉक्टर बेक को. ओके, नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जाइमर्स. ओके, ये कौन सोच रहा है कि मुझे अल्जाइमर्स हो गया? एंड व्हाट इज़ अल्जाइमर्स? अल्जाइमर्स आपके पास देखें इस 7 नंबर के ब्लॉक में यहाँ लिखा हुआ है, इट्स अ डिजीज़. ठीक है, ये एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, दैट प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली एंड कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एक्सेट्रा. अब ये कौन सोच रहा है? दिस मैन इज़ थिंकिंग कि मुझे क्या हो गया है, आई हैव गॉट अल्जाइमर्स. ओके, तो वो सोच रहा है कि मुझे ये डिजीज़ हो गया है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी होती है, यानी भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं. ठीक है, वो अब ये सोच रहा है कि मुझे ऐसा डिजीज़ हो गया, मुझे बीमारी लग गई है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, लोगों के नेम भूल रहा हूँ, मेरा माइंड प्रॉपर फंक्शन नहीं दे रहा. ओके, और ये ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज उसने डॉक्टर के सामने डॉक्टर को क्या बोला कि ओके ग्रैनी, यस ग्रैनी बोला था ना, दैट इज़ वाई ही इज़ थिंकिंग कि उसे ये डिजीज़ हो गया है. ओके, दिस इज़ अ डिजीज़. ओके, talking of marigolds, Granny surrounded her house with them as she believed they kept snakes away. Okay, अब वो बिल्कुल यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई डॉक्टर की. अब वो बता रहा है अपने प्रीवियस चाइल्डहुड की बात के जिसमें उसकी ग्रैनी क्या करती थी. मैरीगोल्ड्स की यहाँ बात हो रही है. मैरीगोल्ड्स क्या है? दीज आर द येलोइश फ्लावर्स. ओके, इन उर्दू मैंने आपको बताया था गेंदे के फूल. ठीक है, यहाँ उन फूलों की बात हो रही है. दिस मैन इज सेइंग कि जब मैं छोटा था तो ग्रैनी क्या करती थी, शी सराउंडेड हर हाउस विद देम एज शी बिलीव दे केप्ट द स्नैक्स अवे. ओके, अब उसको क्या लगता था कि दीज फ्लावर्स कैन केप द स्नैक्स अवे. ये उस ग्रैनी का बिलीव था, उसकी ग्रैंड मदर का. तो वो पूरे घर में इन फूलों से पूरे घर को क्या करती थी, सजाती थी. यहाँ पे आप मार्क कर लें, टुमारो द लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर अपेरेंटली. ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा कल का लेक्चर. अब मैं दोबारा से आपको मीनिंग्स बता रही हूँ. दोज हु हैव मिस्ड द मीनिंग्स, हेयर आर द मीनिंग्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. राइट इट डाउन ऑन योर बुक. स्टर्न, सीरियस. In Urdu it is sakht. Reserved, a person not being friendly. Khansama, cook. Indulging, involve. In Urdu it is mulawwis. Remarked, to say something. And last one is puzzled look, unable to understand. अब बच्चे, this was today's lecture. If you have any question, you can ask me now. If any one of you have some confusion in today's lecture, you can ask me. Okay, raise your hands. बच्चे, आपको कोई मसला हो तो आप रेज हैंड करें एंड यू कैन आस्क मी. ओके, टुमारो आई विल आस्क क्वेश्चंस. अभी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इट मीन्स के ऑल क्लियर टू यू पीपल. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. सी यू इन टुमारोज लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.